Hello students, I am Akshata मैंने M.Tech किया IIT कानपुर से and then I've done my PhD in Electronics and Communication. इन वीडियोज़ में हमने क्लास 11th मैथ्स का पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है. We have taken the topics one by one. We had started in the last two lectures we had started with the complex numbers. Complex numbers क्या है? We had done that. Then we had done certain operations on the complex numbers in the previous two lectures. Today we will be starting with conjugate of a complex number. Conjugate क्या होता है complex number का? Suppose we have a complex number z, which is a plus ib. So as we had done before, a is the real part, this is the real part, and this is the imaginary part. Individually a and b are real numbers. a और b real numbers होते हैं, but अगर ये part देखें तो this is real number and this is the imaginary part. I जैसे ही लगता है तो it becomes the imaginary part, where I is nothing but under root minus 1. This is the definition of I. This all we had done. Now अगर z हमने a plus ib लिया है and we talk about the conjugate of z, तो first of all we denote it with z bar. We denote it with z bar and the conjugate of z will be a minus ib. That is, we just reverse the sign of the imaginary part. अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस होता और इसका वापस हमसे कहा जाता कि अब इसका वापस से कॉन्जुगेट लीजिए तो दिस वुड हैव बीन a प्लस ib. तो मतलब इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होगा, टोटल इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन होगा, इट इज सिंपली रिवर्स्ड एंड दैट बिकम्स द कॉन्जुगेट ऑफ द ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर. सपोज योर z is given as 5 plus 7i. If this is the complex number, then the conjugate of this number would be 5 minus 7i. So all you have done is reversed the sign. Suppose your z is x plus 1 plus I y minus 5. If this is your complex number, so your bar would be x plus 1 minus I y minus 5. Rest of the things remains the same. Your a part, your b part, everything remains the same. All that is changing is the sign of the imaginary part. Simple. So this is the conjugate. Now there are certain properties of conjugate number. अगर हम z का conjugate अगर हम देखें तो exactly what is it? Argand plane अगर हम बनाए, which we had done in the previous lecture, अगर हमने Argand plane बनाया, this is the real part, this is the imaginary part. This plane is known as the Argand plane on which we represent the complex number graphically. इस Argand plane पे we represent the complex number graphically. तो अगर ये हमारा ये real axis होती है and this is the imaginary axis. Suppose एक point हमारा z यहाँ पे है, this point is z x y. ordered pair की तरह भी हम complex number, we have done this also, कि हम किसी भी complex number को we can denote it in the form of ordered pair also. तो अगर ये इसका ordered pair है z का suppose, तो z conjugate की जब हम बात करते हैं, when we talk about z conjugate of z की बात करेंगे तो imaginary part में negative sign आ जाता है. That means same z कहाँ पे आ जाएगा? Somewhere over here, because it becomes x minus y. माइनस x तो पॉजिटिव ही रहेगा बट y का माइनस आ जाएगा, तो x ऑफ माइनस y. सो दिस इज योर z बार. तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, z का रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? z का रिफ्लेक्शन हो रहा है along the रियल एक्सिस. तो कॉन्जुगेट इज नथिंग बट, कॉन्जुगेट की अगर हम बात करें तो इट इज नथिंग बट द इमेज और रिफ्लेक्शन ऑन द रियल एक्सिस. दिस इज रिफ्लेक्शन ऑन द रियल एक्सिस. अब अगर हम माइनस z ले लें, सपोज यू टेक माइनस z, ये तो z बार हो गया, दिस इज z कॉन्जुगेट. नाउ इफ यू टेक माइनस z क्या हो जाएगा? माइनस z इज सिंपली माइनस a माइनस आई बी, माइनस a माइनस आई बी. माइनस a मतलब रियल पार्ट भी जो है x और y हमने लिया है ना, लेट्स टेक दिस x एंड y ओनली, माइनस एंड माइनस. माइनस x, अगर ये x था, सपोज दिस इज x एंड दिस इज y, तो माइनस x कहाँ होगा? इट वुड बी समवेयर ओवर हियर एंड माइनस y इट इज हियर. सो योर this is your minus x minus y, this is your minus of z, this is minus z.
तो बेसिकली अगर हम देखें z अगर हमारा ये है तो जो कॉन्जुगेट होता है इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ z अलोंग द रियल एक्सिस, एंड व्हाट इज माइनस z? माइनस z इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कॉन्जुगेट अलोंग द इमेजिनरी एक्सिस. तो दिस माइट कम इन योर ऑब्जेक्टिव टाइप कि जो z है उसका जो रिफ्लेक्शन अगर हम रियल एक्सिस पे लें तो इट इज द z कॉन्जुगेट, और z कॉन्जुगेट का अगर हम इमेजिनरी एक्सिस पे रिफ्लेक्शन लें तो इट बिकम्स माइनस z. एंड दिस इज द आर्गन प्लेन. इसमें ये सारे हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. नाउ देयर आर सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कॉन्जुगेट. तो बेसिकली कॉन्जुगेट हुआ क्या? सिंपली हमने क्या किया है, जो इमेजिनरी पार्ट है उसका हमने साइन चेंज कर दिया है. This is all we have done. We have changed reversed the sign of the conjugate, the imaginary part. Now let's talk about some properties of conjugate. Property 1. Very simple कि अगर conjugate का हमने एक हमारे पास complex number है उसका हमने conjugate लिया, उस conjugate का फिर हम conjugate ले लें तो it is the complex number itself. It says कि conjugate of the conjugate of a complex number is the complex number itself. Conjugate of a conjugate of a complex number is the complex number itself. Number itself. That means अगर हमारे पास z है, suppose if z is equal to x plus iy, your z bar is nothing but x minus iy. अब ये z bar हमें मिल गया, इसका अब कॉन्जुगेट हम वापस लेंगे. कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट हमने पूरा लिया, ये कॉन्जुगेट था उसका कॉन्जुगेट, मतलब इसका अब हमें कॉन्जुगेट लेना है. तो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू रिवर्स द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. सो दिस इज x, माइनस इज देयर, पुट अ प्लस ओवर देयर, plus iy, and if we can see that these two are equal. That is conjugate of the conjugate is the complex number itself. यही हमने original लिया था. That is z is equal to z bar of bar. This is your first property and an easy one. Second property says there are number of properties involved in conjugate of complex number and they can all be proved very easily. Property second says, property 2, it says कि if z is equal to z bar, अगर z अपने conjugate के बराबर है then z is purely real. अगर z अपने conjugate के बराबर है तो मतलब है कि z प्योरली रियल होगा, बिकॉज कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका इमेजिनरी पार्ट, जब उनका रियल पार्ट विद साइन एंड द इमेजिनरी पार्ट विद साइन इक्वल हो, तभी वो इक्वल होंगे. अगर z इज इक्वल टू z बार, दैट इज मान लो x प्लस आई वाई, z हमने ले लिया x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई. यही तो हम कह रहे हैं कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू x माइनस आई वाई. अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो z इज प्योरली रियल. हाउ? ये आई वाई इधर आ जाएगा, इट बिकम्स 2iy और x कैंसिल हो गया दोनों साइड से 0. दैट इज योर y इज इक्वल टू 0. देयर इज नो इमेजिनरी पार्ट. दैट इज z इज प्योरली रियल. यही तभी हो सकता है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन z इज अ प्योरली रियल नंबर. x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी अगर हम लिख रहे हैं तो x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b अलोंग विद द साइन. अगर हम यहाँ पे माइनस कर देते तो दिस वुड हैव बीन y इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब अलोंग विद द साइन दे शुड बी इक्वल. तो ये चीज़ पॉसिबिलिटी है ही नहीं. y कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस वाई, y cannot be equal to minus y unless and until it is equal to 0. So that is what it is saying कि z is purely real अगर z अपने conjugate के ही बराबर है तो. Then your third property says
Z1 प्लस Z2 का बार इज इक्वल टू Z1 बार प्लस Z2 बार. दैट इज the conjugate of the sum of the complex numbers is equal to the sum of the conjugates of the complex number. अगर हमने जब sum कर दिया complex number का, फिर हमने उसका conjugate लिया, this is equal to दोनों complex numbers का हम individual conjugate निकालें and then simply उसे add कर दें. These two are equal to each other. मान लो Z1 हमने ले लिया x1 plus iy1 and your Z2 is nothing but x2 plus iy2. तो we can easily prove this property. Z1 plus Z2 suppose रखें, your Z1 plus Z2 is nothing but इन दोनों को हमने add कर दिया, real part is added with the real part and imaginary part is added with the imaginary part. ये हमारा Z1 plus Z2 आया. इसको अगर हम बार, ये तो हमें Z1 plus Z2 मिला है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, conjugate of Z1 plus Z2. Put a conjugate sign over here, this plus becomes minus. तो Z1 plus Z2 is nothing but this. अब देखते हैं Z1 बार और Z2 बार का सम क्या आता है. Z1 बार plus Z2 बार is equal to, Z1 बार क्या है, x1 minus iy1 plus Z2 बार is x2 minus iy2. और इसको हम साथ में कर देते हैं, x1 plus x2 minus y1 plus y2. And if you can see, तो this is equal to this. ये दोनों भी आपस में equal हैं. That means Z1 bar is Z1 plus Z2 bar is equal to Z1 bar plus Z2 bar. This is equal to this. हर प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन की होगी, डिवीजन की होगी, ऑल दीज प्रॉपर्टीज कैन बी प्रूव्ड सिंपली बाय अज्यूमिंग कि z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अगर इन्वॉल्व हैं तो एक को हम x1 प्लस आई वाई वन मान लेंगे, दूसरे को x2 प्लस आई वाई टू मान लेंगे एंड वी कैन प्रूव एनी प्रॉपर्टी. तो इस केस में जब सम का कॉन्जुगेट ले रहे हैं, दिस इज इक्वल टू इंडिविजुअल सम, किसका, इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स का सम. तो वी कैन प्रूव इट लाइक दिस. फोर्थ प्रॉपर्टी सेज, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज सेम चीज, सेम प्रॉपर्टी है. ऑल यू हैव टू डू इज Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z1 बार माइनस Z2 बार. कुछ नहीं करना होगा, इसमें सेम चीज हमें प्रूव करनी है. सेम Z1 माइनस Z2 पहले तो निकाल लो. Z1 माइनस Z2 हो जाएगा x1 माइनस x2, दिस माइनस दिस माइनस दिस, तो i प्लस i y1 माइनस y2. बार जैसे ही हमने इसके ऊपर बार लगाया तो दिस बिकम्स माइनस. लेफ्ट हैंड साइड हमें मिल गया. अब Z1 माइनस Z2 बार लिख देते हैं. Z1 बार माइनस Z2 बार. Let's write it. Z1 bar is nothing but x1 minus iy1 minus x2 minus iy2, right? This is equal to x1 minus x2 minus of I y1 minus y2. ये हमको next मिल गया. तो this is how you can prove your property. Every time you write it, Z1 Z2 हम लिखेंगे, एवरी टाइम हम बस उसे रिप्लेस करते जाएं, सब्सटीट्यूट करते जाएं एंड वी कैन गेट आवर प्रॉपर्टी. दिस माइनस वी हैव टेकन ओवर हियर, तो दिस इज आई वाई वन माइनस माइनस प्लस आई वाई टू. सो दिस इज माइनस आई वाई वन, दिस इज प्लस आई वाई टू. जो ऊपर का साइन था बस सिंपली हमने कॉमन ले लिया. तो वी कैन सी दिस इज इक्वल टू दिस. सो वी हैव प्रूव दिस प्रॉपर्टी. क्या किया है, सिंपली हमने रिप्लेस करते गए हैं Z1 और Z2 पे. और कॉन्जुगेट हमको पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं. तो एनी प्रॉपर्टी कैन बी प्रूव्ड. लाइक योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेज Z1 Z2 इज इक्वल टू Z1 Z2. Z1 Z2 बार इज इक्वल टू Z1 बार डॉट Z2 बार. मतलब जो प्रोडक्ट है उसका अगर हम कॉन्जुगेट लें, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्जुगेट्स. The conjugate of the products is equal to the product of the conjugates. The conjugate of the products is equal to the product of the conjugates. This is, so again this can also be proved. If this is x1 plus i y1,
इंटू x2 प्लस i/2, ये हो गया z1 इंटू z2. तो वी कैन राइट दिस एज, इधर लिख लेते हैं, दिस एज x1 x2 माइनस i इंटू आई इज -1 y1 y2, ये हो गया रियल पार्ट, प्लस i लिखा x2 y1 प्लस x1 y2, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट. दिस इज z1 z2. बार लगाया तो दिस बिकम्स माइनस, बार लगा दिया दिस बिकम्स माइनस. ये हमारा आ गया z1 z2 का बार. अब z1 बार इंटू z2 बार करने के लिए क्या करेंगे, x1 माइनस आई वाई वन, x2 माइनस आई वाई टू, मल्टीप्लाई x1 x2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया आई स्क्वायर इज -1, इट बिकम्स माइनस y1 y2, माइनस ऑफ आई y1 x2 y1 प्लस x1 y2. These two are equal to each other. मतलब कभी भी कोई भी ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो सम की हो, चाहे वो डिफरेंस की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, एंड फर्दर वील सी डिवीजन की प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी होगी जो साथ में ये लोग दे रहे हैं, जैसे z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट. दीज आर वेरी सिंपल टू रिमेंबर ऑल्सो कि z1 z2 का अगर टोटल का कॉन्जुगेट है, उसे सिंपली कॉन्जुगेट को हटा दो, कॉन्जुगेट हटा दो और इंडिविजुअल में कॉन्जुगेट हम लगा सकते हैं. तो टोटल, जब भी कोई भी टोटल का कॉन्जुगेट आ रहा है कि एक टोटल टर्म का कॉन्जुगेट है, it can always be replaced by individual conjugates like here. Similarly, you can also prove your property for the division part. That is property, next property कहती है, we won't be proving it because it's again very simple और same lines पे होगी. Next property says, your sixth property, it says z1 z2 इस whole का बार is equal to z1 बार upon z2 बार. सेम थिंग जो है कि टोटल का जो बार है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू बार ऑफ इंडिविजुअल. सेम ऑपरेशन सेम कर रहे हैं, चाहे वो सम कर रहे हैं, चाहे वो डिफरेंस कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, ऑपरेशन रिमेन्स द सेम. ऑल व्हाट इज चेंजिंग इज जो टोटल के ऊपर हमारा कॉन्जुगेट लगा है, इट कैन ऑलवेज बी रिप्लेस्ड बाय इंडिविजुअल कॉन्जुगेट्स. तो चाहे वो सम हो गया, चाहे वो डिफरेंस हो गया, चाहे वो प्रोडक्ट हो गया, चाहे वो डिवीजन हो गया. And last property of the lot is, again this can also be proved very easily कि z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर का बार. एवरीथिंग को अब हम इंटरचेंज कर सकते हैं. इन शॉर्ट एवरीथिंग कैन बी इंटरचेंज. ये इसमें हो सकता है, ये इसमें हो सकता है. z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z स्क्वायर का बार. They are equal. All these properties can be proved very easily. So we will be doing certain questions on these to have a better understanding of these properties. Proving के बहुत questions आते हैं इसमें हमारे. First we'll begin with very simple questions on conjugate, basic questions. Like first example, find the real numbers if x plus yi 3 plus 5i. इसी तरह ही के क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स कि x plus yi प्लस इंटू 3 plus 5i, इसका जो प्रोडक्ट है, दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ, इट इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 minus 24i. You have to find the values of x and y. It is saying कि this product is the conjugate of -6 minus 24i. तो अभी तो ये हमें प्रोडक्ट फॉर्म में दे रखा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका प्रोडक्ट निकाल के फर्स्ट काम हमारा होना चाहिए कि वी शुड राइट दिस टर्म इन द फॉर्म a plus ib. सबसे पहले चाहे प्रोडक्ट में दे रखा हो, चाहे डिवीजन के उसमें दे रखा हो, सम में दे रखा हो, कैसे भी दे रखा हो, फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज कि वी शुड सिंप्लीफाई इट इन द फॉर्म a plus ib. तो a plus ib में करने के लिए व्हाट वी विल डू इज वी विल फाइंड द प्रोडक्ट. तो दिस इज 3x and 5y, minus of 5y.
क्योंकि I इंटू आई इज आई स्क्वायर विच इज नथिंग बट इक्वल टू -1 एंड 5y, तो -5y. दिस इज द रियल पार्ट. व्हाट इज द imaginary part? Imaginary part is 3x, 3 into x, 5x and 3y. ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया. इट इज सेइंग कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमको मिला है, दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24i. तो व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस? द कॉन्जुगेट इज -6 + 24i. -6 + 24i इसका कॉन्जुगेट हुआ और ये कॉन्जुगेट इज इक्वल टू दिस प्रोडक्ट. Now all we have to do is we will get two simultaneous equations. Just solve for x and y. 3x minus 5 is equal to -6 and 5x plus 3y is equal to 24. The values of x and y come out to be x is equal to 3 and y is equal to -3. Simple simultaneous equations हैं. इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. Solve for y. Once you get the value of y, replace its the value of y and get the value of x. So x comes to be 3 and y comes to be -3. क्वेश्चन पढ़ के हमें वी हैव टू जस्ट सी कि क्या हमें राइट हैंड साइड पे क्या हमें लेफ्ट हैंड साइड पे दे रखा है, क्या राइट हैंड साइड पे दे रखा है. वी हैव टू इक्वेट रियल पार्ट विद द रियल पार्ट, imaginary part with the imaginary part, and first step should always be to bring down the complex number in this form, that is a plus ib. Another question if we do, question number 2. We have to determine x and y for which the statement x plus y upon I plus x minus y plus 4 is equal to 0. It says कि this statement is true. We know this statement कि this expression is equal to 0. We have to find x and y. This we have to find the values of x and y. So again, first step should be to get the complex number in the form a plus ib. Once we have done that, we know the right hand side. Right hand side में हमारे पास क्या है? 0 है. That means 0 भी कैसा हम लिख सकते हैं? 0 plus 0i. We can always write this as 0 plus 0i. Equate the real part to 0, equate the imaginary part to 0 and get the values of x and y. पर उससे पहले ये i नीचे है, तो what we have to do is कि हमें x plus y i into i upon i, हमें क्या करना है? नीचे डिनोमिनेटर से कॉम्प्लेक्स पार्ट हटा देना है, डिनोमिनेटर से इमेजिनरी पार्ट रिमूव करना है. तो और क्या किया हमने? i into i कर दिया. प्लस x minus y plus 4 is equal to 0. So this is xi plus yi और ये I into I is -1 minus plus x minus y plus 4 is equal to 0. इस धर भी ले जा सकते हैं. We can keep it over here also कि minus x plus y I plus x minus y plus 4 is equal to 0. So this becomes your real part, this becomes your imaginary part. You can equate both of them. एक हो जाएगा x minus y is equal to -4 because x minus y plus 4 is equal to 0. ये क्या है? 0 plus 0i. तो ये real part है. This is the real part. It has no i in it. तो this is the real part. Real part को हमने real part से equate कर दिया. Imaginary part को equate with x plus y is equal to 0. x plus y, माइनस साइन तो 0 के साथ चला गया, तो x plus y is equal to 0. सॉल्व फॉर these two equations. x is equal to -y के साथ हम कर सकते हैं. सो यू गेट द वैल्यू एज x is equal to -y है. इसमें -y को यहाँ पे हमने रख दिया, x की जगह रख दिया. -y plus 4 is equal to 0. That is 2y is equal to 4 और y is equal to 2. Then x is equal to -2. x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू
2 है. All we have to do is we should always know how to solve the simultaneous equation. That is a simpler thing. But how to go about it कि पहले हमें कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्म में लेकर आना ही है. एक बार a प्लस आई बी के फॉर्म में हम ले आए तो all we have to do is राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट से इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट कर देना है. And all questions will have the same thing. Most of the questions will have the same thing only. Unless and until they have asked about the multiplicative inverse, the additive inverse or things like that. अगर हमें दे रखा है, now next question says कि if we know that z1 is equal to 3 plus 5i and z2 is equal to 2 minus 3i, you have to verify that z1 divided by z2 whole bar is equal to z1 bar upon z2 bar, जो हमारी एक प्रॉपर्टी थी. तो we had not proved that as property, but हम उसको चलो questions में we can do it, we can try and do it. z1 by z2 is 3 plus 5i upon 2 minus 3i. This is z1 by z2. Forget about this conjugate. Right now we are talking about z1 upon z2. सिर्फ z1 upon z2 हमने लिख लिया. पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, a प्लस आई बी में लाना. a प्लस आई बी में हम कैसे लाएंगे, जब भी डिनोमिनेटर में हमें कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी दे रखी होती है तो व्हाट वी डू इज वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज द डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट ऑफ दिस डिनोमिनेटर. दैट इज 2 प्लस 3i डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3i. ये हमको मिल जाएगा. दिस इज 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, माइनस 15 आएगा ये, प्लस i कितना आ जाएगा, i 2 5 ज़ा 10 एंड 3 3 ज़ा 9, 19i अपॉन 4 प्लस 9. दिस इज नथिंग बट माइनस 9 प्लस 19i अपॉन 13. ये तो हमको मिल गया z1 अपॉन z2 का बार. दिस इज ओनली z1 अपॉन z2. नाउ इफ यू टॉक अबाउट z1 अपॉन z2 का बार, so this is equal to minus 9 minus 19i upon 13. ये तो हमको ये मिल गया. अब दूसरा हमें क्या करना है, we have to do the right hand side. This was your left hand side. पहले हमने z1 by z2 निकाला, then we had calculated z1 by z2 हमें एक बार मिल गया. ये इसका कुछ नहीं करना, अब हमें सिंपली कॉन्जुगेट निकालना है. कॉन्जुगेट क्या होगा, रिवर्स द साइन ऑफ द इमेजिनरी पार्ट. नेक्स्ट इज z1 बार अपॉन z2 बार, z1 बार अपॉन z2 बार. This is equal to z1 bar is 3 minus 5i, z2 bar is 2 plus 3i. फिर से डिनोमिनेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, हम इसे रिमूव करेंगे. कैसे करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 minus 3i, 2 minus 3i, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, minus 15. Next is I with I, minus 10i and minus 9i divided by 4 plus 9, minus 9 minus 19i upon 13. So this is equal to this. Minus 9 minus 19i by 13 is equal to this. That is, these two are equal to each other. कि z1 अपॉन z2 का बार इज इक्वल टू z1 का बार अपॉन z. दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी, डिविजन वाली प्रॉपर्टी. वो हमें प्रूव करने के लिए क्या करना था, सिंपली जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो हम लिखते जाएंगे. डिनोमिनेटर में जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर आया, रिमूव दैट. हाउ टू रिमूव दैट, इसका कॉन्जुगेट लिया डिनोमिनेटर का और ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, एंड वी गेट अ सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर विद अ रियल पार्ट विद एन इमेजिनरी पार्ट. सिमिलरली दूसरे वाले में किया, वी विल सी कि लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड. अब नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस. ये हुआ था कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की. कॉन्जुगेट जब भी हमें करना है तो हम कॉन्जुगेट कैसे करेंगे और उसकी कोई भी प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो, चाहे कोई भी क्वेश्चन करना हो, तो वो तो एक बहुत ही सेट पैटर्न है टू डू ऑल द न्यूमेरिकल्स. नेक्स्ट इज योर मॉड्यूलस. तो ये था कॉन्जुगेट. नेक्स्ट इज मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हम मॉड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं. We call it mod of a complex number.
मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर. व्हाट इज मॉड्यूलस? अगर हमारे पास z हमें दे रखा है a प्लस आई बी, सपोज लेट, अगर हमारे पास z दे रखा है तो मॉड्यूलस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. दिस इज ऑल्सो नोन एज द एब्सोल्यूट वैल्यू. दिस इज ऑल्सो नोन एज द मॉड्यूलस एंड इट इज गिवन एज ए स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का जो रियल नंबर है बी स्क्वायर, ये सिर्फ बी जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर अंडर रूट. दिस इज द मॉड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. अगर हम इसको देखें तो व्हाट इज इट एक्चुअली? ये एक नंबर हो गया ए बी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में. दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम, ये क्या है, दिस इज योर बी, दिस इज योर ए. what is this? This is a square plus b square का under root. So this is basically nothing but the distance of the complex number from the origin. So modulus basically gives distance of the complex number from the origin. From the origin. तो मिल क्या रहा है हमको? डिस्टेंस मिल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम द ओरिजिन, क्योंकि ये डिस्टेंस इज b, दिस डिस्टेंस इज a, द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उसका अंडर रूट. तो मॉड्यूलस गिव्स अस द डिस्टेंस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द ओरिजिन. अगर यही हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर लें, इफ वी टॉक अबाउट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, मान लो z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो z1 माइनस z2 उसका मॉड will give us the distance between these two complex number. This is nothing but the distance between z1 and z2. ये distance देगा z1 और z2 के. तो अगर ये suppose कोई हमारे पास argent plane है, this is our z1, this is our z2, so this distance जो इनके बीच का distance है, that is given by z1 minus z2 उसका mod. इसका मॉड हो क्या क्या? अगर z1 इज सपोज x1 प्लस iy1 माइनस z2 इज x2 माइनस iy2, माइनस साइन लग गया, z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iy2, माइनस लगने के बाद माइनस माइनस साइन, इसका मॉड हमें निकालना है. दिस मॉड इज नथिंग बट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. दिस इज y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर. सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन द आर्गेंट प्लेन. तो z1 z2 अगर हमारे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z1 क्या लिया था हमने? x1 प्लस iy1, z2 लिया हमने x2 प्लस iy2. तो अगर ये दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो उनका अगर डिफरेंस का मॉड हम निकालें तो इट गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स विच इज नथिंग बट x1 माइनस x2 का स्क्वायर. एंड दिस वी शुड लर्न. दिस फॉर्मूला शुड बी यूज्ड वेरी इजली एंड इट शुड नॉट बी डिराइव्ड फर्स्ट. ये हमें याद होना चाहिए. इफ वी आर आस्क्ड टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ, सपोज फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ 3 plus 2i का स्क्वायर divided by 4 minus 3i and we are asked to find the modulus of this. हमें निकालना है इसका मॉड्यूलस. तो how will we find out the modulus of this? First thing again look at the complex number which is given to us. इसमें क्या है? डिनोमिनेटर में हमारे पास we have a complex number. तो first of all we should change it in the form a plus ib, a plus bi. उसके लिए हम क्या करेंगे? दिस मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 3i, 4 प्लस 3i. तो उससे पहले इसको भी हम खोल देंगे. दिस इज नथिंग बट 9 माइनस 4 प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12i डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 16 प्लस 9. दिस होल मल्टीप्लाइड विथ 4 प्लस 3i. ये हमको मिलेगा. This is what we get. We will write the value directly. This is 5 plus 12i and this is 5 plus 12i into 4 plus 3i divided by 25.
इसका हमें मॉड्यूलस निकालना है, तो पहले हमें क्या करना होगा, वी शुड हैव द नंबर दिस क्वांटिटी इन a प्लस आई बी फॉर्म। एक बार हमें a प्लस आई बी में निकल आएगा तो मॉडुलस हम इजली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर उसका अंडर रूट रख के निकाल लेंगे। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस गिव्स अस -16 प्लस 63i डिवाइडेड बाय 25। यू गेट द कॉम्प्लेक्स नंबर एज दिस। इन दोनों को हमने किया मल्टीप्लाई, दिस इज सिंपल वेरी इजी मल्टीप्लिकेशन, वी गेट दिस। तो अब इसका मॉड अगर हमें निकालना है तो इट इज़ नथिंग बट 1/25 बाहर ही रह जाएगा, 16 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 65/25 विच इज़ नथिंग बट 13/5। जो नंबर आएगा दैट इज एक्चुअली द स्क्वायर ऑफ 65, तो 65 हमें मिला, 65 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 13/5। तो हमें मॉड्यूलस निकालना था, रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड कर दिया। तो मॉड्यूलस मतलब हमने डिस्टेंस निकाला इस नंबर का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ये कितना दूर है, दिस इज 13/5 यूनिट्स डिस्टेंट फ्रॉम योर ओरिजिन। Last numerical of this lot, and again a very simple one. हमें दे रखा है कि z is equal to mod of z, हमें दे रखा है कि it is equal to 1. We have to prove that z minus 1 upon z plus 1, where z is not equal to -1, it is purely imaginary, is purely इमेजिनरी। पहले तो हमको ये प्रूव करना है, दिस वी हैव टू प्रूव फर्स्ट कि मॉड ऑफ z इज गिवन टू अस एज इक्वल टू 1। अब हमें प्रूव करना है कि इट z -1 अपॉन z प्लस 1 इज प्योरली एन इमेजिनरी नंबर। z को ले लेते हैं, लेट्स टेक इट एज x प्लस आई वाई। z को ले लिया, लेट अस सपोज दिस एज इक्वल टू x प्लस आई वाई। एक बार हमने इसको कर लिया, हम इसको रखेंगे z -1 z प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x प्लस आई वाई माइनस 1 x प्लस आई वाई प्लस 1, दिस इज इक्वल टू x माइनस 1 प्लस आई वाई अपॉन x प्लस 1 प्लस आई वाई। ये हमको मिल गया। जैसे ही हमको ये मिला, नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि हम इसको नीचे डिनोमिनेटर का क्या रिमूव कर दें, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 माइनस आई वाई, x प्लस 1 माइनस आई वाई। इसके कॉन्जुगेट से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई किया, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, x this into this, this into this, then this into this, this into this, and then this into this. Finally what you get is x square plus y square minus 1 plus 2yi होल डिवाइडेड बाय x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये हमको जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ नंबर लाइक दिस। एक बार हमको ये मिल गया, हमें प्रूव करना है कि दिस शुड बी, ये क्या आया है, दिस इज नथिंग बट z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1, ये हमको मिला है। हमें प्रूव करना है कि दिस इज अ प्योरली इमेजिनरी नंबर। राइट नाउ इफ वी से वी हैव अ रियल पार्ट, हमारे पास इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट भी है, बट वी हैव बीन गिवन कि z मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मॉड ऑफ z क्या है, मॉड ऑफ z इज नथिंग बट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमको दे रखा है। दैट मीन्स अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 1। हियर वी हैव दिस क्वांटिटी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 बिकम 0। यू आर लेफ्ट विथ 2yi अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिर्फ i की क्वांटिटी रह गई, देयर इज नो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। जब रियल पार्ट नहीं है दैट मीन्स this number is z minus 1 upon z plus 1. This number is purely an imaginary number. This is purely an imaginary number. There is no real part to it. Next part says कि अगर हम z को 1 ले लें, if we take z as equal to 1,
सपोज वी टेक इसी क्वेश्चन का फर्दर एक्सटेंशन है कि अगर हम z को 1 ले लें, इफ वी टेक z इक्वल टू 1, दैट इज 1 प्लस 0 आई ले लिया हमने, 1 प्लस 0 आई ले लिया, दैट इज x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 0 आई, ये लिया है। z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 इज x प्लस आई वाई माइनस 1, x प्लस आई वाई प्लस 1, z इज 1, दिस इज 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 1, तो हमने क्या किया, x को 1 रखा प्लस y इज इक्वल टू 0 माइनस 1, 1 प्लस 0 प्लस 1, ठीक है। 1 माइनस 1 इज नथिंग बट इक्वल टू 0, सो दिस क्वांटिटी z माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 दिस बिकम्स इक्वल टू 0। तो अगर हम z को 1 ले लेते हैं तो दिस क्वांटिटी बिकम्स इक्वल टू 0, तो इसलिए हम z को 1 नहीं लेंगे, मतलब इट विल रिड्यूस टू 0 एनी हाउ। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट द न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एवरी टाइम कॉन्जुगेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हमें डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो वी हैव टू रिमूव दैट फॉर आर मैथमेटिकल कन्वीनियंस। उसके लिए हमको कॉन्जुगेट जो डिनोमिनेटर का है हम उसे रिमूव कैसे करेंगे, ऊपर नीचे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई। क्यों करते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई, बिकॉज वी नो दिस प्रॉपर्टी कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रियल नंबर एक मिल जाता है, वी गेट अ रियल नंबर विच इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, और उसे हम वी कैन सेट इट असाइड, वो फिर हमें मैथमेटिकली कोई भी इनकन्वीनियंस नहीं देता है। दैट इज वाई वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद द कॉन्जुगेट, तो जिससे कि डिनोमिनेटर से हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली रिमूव कर सकें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडे रिगार्डिंग द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट लेक्चर में भी वी विल एक्सटेंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओनली। थैंक यू।